दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। क्या लगता है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। लगातार दोनों सदनों में विरोध देखने को मिल रहा था और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो आज देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्यवाही में ऐसे ही गतिरोध देखने को मिलेगा या फिर चर्चा जारी होगी। Congratulate the Member of Parliament on asking me a very pertinent question. Andhra Pradesh government has taken substantial steps and given a lot of credence and recognition to the space of skilling. I'd like to inform the House and the Honorable Member. बता दें कि दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है और ऐसे में आप देख सकते हैं लोकसभा की तस्वीरें। वहां पर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और ऐसे में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही गतिरोध देखने को मिल गया। 2019, a total of 6 COEs have been recognized, given that status by the ministry. But apart from this, a total of 202 centers of excellence have been established with the help of our sector skill councils. The 36 sector skill councils, as you know, are the principal bodies where we involve industry. In fact, these organizations are led by industry and they work in coordination under the ministry as well. Sir, out of the 202, because the Honorable MP asked me about Andhra Pradesh, a total of 8 centers of excellence have been established in Andhra Pradesh. Thank you. Supplementary, sir, my constituency Anantapur receives sunlight all around the year, sir, and it is home to 2 major solar plants contributing 62% to the state's renewable energy capacity, sir. A world-class energy university is also proposed to be established in Anantapur, owing to the region's immense renewable energy potential. Under the visionary leadership of Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh has recently introduced the AP Integrated Clean Energy Policy 2024, sir, targeting the generation of 78.5 gigawatts of solar and 35 gigawatts of wind power over the next 5 years, sir. बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र और ऐसे में दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है और ऐसे में लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगातार आज शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है, लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेर रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। Under PMKVY4, we are targeting to create a large number of jobs under this scheme. The Green Hydrogen Mission targets 6 lakh jobs in the value chain, and 50,000 OJT training is also targeted by the mission. Likewise, our ministry is working in consonance with that scheme as well. Sir, our Green Sector Council has trained 5,82,579 candidates in the space of solar energy, waste management, wind energy, green hydrogen, small hydro and other green jobs. The Honorable MP has asked specifically with regards to setting up a center of excellence in the state of Andhra Pradesh. I would recommend that the Honorable MP can work with the state government, can identify credible institutions that are active in that space and can recommend the same to my ministry. We will follow due process. माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई
12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और वहीं सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ऐसे में बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है, लेकिन सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी। और ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आज लोकसभा, वहीं बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार जी, एसोसिएट एडिटर, लगातार बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, लगातार आज शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, गतिरोध लगातार जारी है और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल सदन में गतिरोध 5वें दिन भी लगातार बना हुआ है। दोनों सदनों में जिस तरीके से कार्रवाई पर नजरें थी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा, शोरगुल, भारी हंगामा हुआ है और इसके चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए रोक दी गई है। तो काफी जोरदार हंगामा रहा है, क्योंकि सदन की कार्रवाई जो पिछले 4 दिन से लगातार बाधित देखने को मिली है। कमोबेश यही नजारा 5वें दिन आज नए हफ्ते की कार्रवाई थी और ऐसे में लोकसभा में महत्वपूर्ण कामकाज पर नजरें लगी हैं। 12 बजे के बाद लिस्ट में शामिल जो महत्वपूर्ण बिजनेस, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका बयान लिस्ट में शामिल है, जिसमें वो यहाँ पर अपना बयान देंगे भारत चीन संबंधों को लेकर। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई अभी जारी है, जहाँ आवश्यक दस्तावेज जो है वो सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि इसके बाद एक बार फिर विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर राज्यसभा में भी अपना मुद्दा उठाएगा, जिसको लेकर लगातार पिछले 4 दिन से मुद्दा उठा रहा है। इससे पहले विपक्ष की एक बैठक हुई और इसमें एक रणनीति बनाई गई थी सदन में इन मुद्दों को उठाने को लेकर। तो कमोबेश उन्हीं मुद्दों पर अड़ते हुए आज भी यहाँ पर गतिरोध देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार, विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं और ऐसे में विपक्ष लगातार अडानी और संभल का मुद्दा उठा रहा है, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि सरकार जो है कि इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल। और जो अडानी और संभल का मुद्दा है, इस पर लगातार गतिरोध बना हुआ है और इसी को लेकर आज भी जोरदार हंगामा हुआ है लोकसभा में। और इस दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जो सुचारू रूप से उम्मीद की जा रही थी, नए हफ्ते की नई कार्रवाई है, एक बार फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पर एक जोरदार हंगामा हुआ है और इसी के चलते सदन की कार्रवाई फिलहाल रुकी हुई है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को लोकसभा में स्थगित किया गया है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।